Hi friends, I'm Sapna Agarwal, Creative Director of Ansa Interiors, and today in this post I'm going to discuss about everything worth knowing on how does an interior designer charge their clients in India. So how much does an interior designer cost? अगर आप मार्केट में हैं and you're trying to find an interior designer, you will see prices and services काफ़ी वेरी करते हैं depending on the designer and their cost structure. So whether they will charge you an hourly rate or a flat rate, interior designers will actually exercise a variety of ways to figure out their prices. कुछ देखते हैं कि टोटल अकाउंट देखते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कमीशन परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं ऑन द टोटल प्रोजेक्ट. तो रिगार्डलेस ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ हाउ डज अ इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली चार्ज इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट यू लर्न आफ्टर दैट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर. So beyond picking out the right color of your wall and accent pillows for your sofa, interior designer price will encompass so much more. Usually the rates of interior designer in major cities like Mumbai, Delhi, Pune, NCR, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, they would be generally same. उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता प्राइसेस का और पॉलिसीज़ का. बट जितनी भी आपके रेट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन टायर 2 सिटीज़ हैं, दैट विल बी डेफिनेटली लेस दैन द मेट्रो सिटीज़. So as you would know that interior designers have a very crucial role and important role in designing and decorating both the residential and commercial properties. Their role is very crucial because they are professionally trained to make your spaces fully functional as per your style, your need. They will take every project as a new challenge, and based on your functional requirement and budget, they will actually fully transform the aesthetics and functionality of the space. उनका अपना experience है, they have smart tools to achieve these goals. Hence, they can be a great help in interior designing and decorating. It could be a home, office, showroom or anything. But हमें से ज़्यादा लोग wonder करते हैं that whether it makes sense to pay a fee of an interior designer. Many of us actually do not even have an idea how much would they charge, what to expect from them. So let's start by understanding कि interior designer करेगा क्या. They will first take the dimensions of your site. They will design a computer rendering of your space for better visualization. Then they will make a working drawing. They will effectively manage the contractors like electrician, painters, carpenters and many more. उसके अलावा they will help you source and purchase, arrange the installation of products from the large network of stores and furniture designers which are available in the market. So there is a lot of benefit of hiring an interior designer, whether it is in person or maybe now online. But to find out if an interior designer is right for you, it is very important to get a clear, true cost. So the first helpful thing to do is determine how much an interior designer cost is to ask some basic questions before hiring a traditional or an online interior designer. So basic question में पहला question होता है what is the project scope. तो क्या are you looking at revamping your living room or just adding a new paint color or decor or just probably a bathroom which needs a little bit of update. But आपका project scope उतना है या आपको पूरा घर पूरा revamp करना है. But being clear and realistic of what can be taken on is a key in narrowing down an interior designer. So since उनके prices बहुत ज़्यादा vary करते हैं depending on the level of complexity and expertise required. So also the second most important question is what is the size of your space. Taking into account the square foot or the space of the space that needs designing, it will help you definitely get a realistic interior design price. So जैसे designers अगर they will spend more time creating options for layout and sourcing pieces for larger homes rather than for an apartment. तो एक अपार्टमेंट 3 bedroom का है तो उसमें कम टाइम लगेगा, आप पूरी कोठी करा रहे हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. Thirdly, most important thing is the experience of an interior designer.
अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सपीरियंस्ड है इन द सेम सेगमेंट, देन द चार्जेस विल बी डेफिनेटली मोर। तो कोई रेजिडेंशियल पिछले 15-16 सालों से कर रहे हैं, उनके चार्जेस ज़्यादा होंगे रादर देन अ न्यू एंट्रेंट जिसने अभी 2 महीने पहले काम शुरू किया है। सो लेट मी टेल यू दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर के चार्जेस। ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बट अलग अलग डिज़ाइनर्स अलग अलग तरीके के रोल मॉडल्स, प्राइसिंग मॉडल्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खुद बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रेडेंशियल्स, अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ वर्क। तो कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड फी फॉर्मूला लेते हैं फॉर देयर एंटायर प्रोजेक्ट्स, but others may charge based on the carpet area or depending on the overall interior designing budget of the client. So मैं आपको कुछ ballpark ideas दे रही हूँ यहाँ पे कि various price models कैसे चलते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर्स इंडिया में उसे कैसे यूज़ करते हैं। बट आप जब मार्केट में पूछते हैं तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप 3-4 लोगों से, 3-4 इंटीरियर डिज़ाइनर से आप प्राइसेस लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए। सो नाउ फ्लैट डिज़ाइन फॉर्मूला होता है दैट इट्स अ कंसल्टेंसी फी। इन दिस मॉडल यू एज अ क्लाइंट विल पे अ फ्लैट फी, they call it design consultancy fee, to an interior designer. They will charge you a flat fee for designing and consultancy both. तो ये रोल मॉडल बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है फॉर दोज हु हैव टाइम एंड हु आर लुकिंग फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस. So both the client and interior designer firm will have clear expectations कि उन दोनों से क्या, so out of both what is their expectation. तो इंटीरियर डिज़ाइनर ने खाली डिज़ाइन देना है और क्लाइंट ने एग्जीक्यूशन के लिए किसी और को ढूंढना है. So obviously this model does not cost a lot and interior designers will not be executing the project. This will work well if you plan to get it done through your own carpenter, but instead of working randomly, you can hire a professional and take care of the functionality and aesthetics of the project. So इसमें क्या होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर विल सेंड देयर ओन टीम टू टेक द मेजरमेंट, दे विल मेक द लेआउट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट दे विल क्रिएट a sketch or a design elevation. So this basically covers the part of the house that you are trying to design. So it could be specific areas or it could be the complete house also. Now say for example that how you want to place a TV cabinet or a bed or a wardrobe or a shoe cabinet. This will all be designed on that. They will also create 2D and 3D sketches that will give you enough idea of how to end a project कि वो ख़त्म होने के बाद कैसा लगेगा. So इस design stage पे they can also suggest you some changes. They can also suggest you the color, layout. They will also so if you don't like the design, then the designer will probably make a 3D again and resend you. बट आपके पहले जो आपका एक उनके साथ एक फीडबैक है या जो आप लोगों की मीटिंग में डिस्कस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ चेंजेस आपको सजेस्ट कर देते हैं. वंस दे हैव द 3Ds आर अप्रूव्ड, देन दे विल गिव यू दी स्पेसिफिकेशंस कि अब ये बनना कैसे है, फर्नीचर कैसे बनेगा, फॉल सीलिंग कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग रिलेटेड वर्क कैसे होगा, आपका जो अप्रूव्ड 3D है उसके अकॉर्डिंग. सो जो फाइनल डिलीवरेबल्स होते हैं उसमें जनरली आपके पास एलिवेशन, 2D, 3D, मेजरमेंट, स्पेसिफिकेशन, वर्किंग ड्राइंग सब कुछ आता है जो आप किसी भी लेबर या कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं और काम करा सकते हैं. सिंस यू ऑलरेडी हैव द स्पेसिफिकेशंस, now finding the carpenters or contractors to do that or execute that is kind of easier because अब उनको पता है कि उनको क्या काम execute करना है. You are not saying कि कोई भी बेड बना दो, आप बोल रहे हो ये बेड बनाना है, इसके चार्जेस बता दो. So some of the interior designer firms also offer supervision services for free, or you can ask them to give supervision which is on chargeable basis. या तो पर विजिट बेसिस पे होगा या इंक्लूडेड होगा. तो उसमें वो जो टेक्निकल सुपरवाइज़र होता है वो जब आता है वो इंश्योर कर लेता है कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्किंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो जनरली अ सुपरवाइज़र और अ साइट इंजीनियर विल विजिट वंस इन 2 weeks or once in a week and check the quality and progress of work. इस पर्टिकुलर मॉडल में वर्क करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं.
कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को और क्लाइंट को दोनों को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पता होती हैं। एज अ होम ओनर आपका पूरा कंट्रोल होता है ओवर द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल बीइंग यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप हर चीज़ खुद अपने आप खरीद रहे हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट यू हैव टू हैव टाइम इन योर हैंड एंड यू हैव टू बी अ डू इट योरसेल्फ पर्सन, क्योंकि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। इन दिस मॉडल मतलब इसमें ऐसा होगा दैट यू विल वर्क वेल विद टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, बट देन be ready to hustle with various stakeholders from carpenters to plumbers, electrician, glass technicians। तो सबके साथ आपने एक बारी तो डील करना ही होता है इस मॉडल में। Also it will be your responsibility to bring in raw material like plywood, adhesive, nails, glass, electrical lights etc. on your own। But आपके जो डिज़ाइनर होंगे they will be very happy to connect you with the vendors and they can also guide you कि मटेरियल कहाँ से सोर्स किया जाता है। इसके अलावा जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है दे कैन चार्ज ऑन डिफरेंट मॉडल्स। सो द चार्जेस जो इस मॉडल में होते हैं फिक्स्ड चार्जेस, वो डिपेंड करेंगे साइज़ पे और स्कोप पे प्रोजेक्ट के, बट अदरवाइज अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी वो चार्जेस कर सकते हैं कोट। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है कि अब आपके पास सब कुछ ट्रांसपेरेंट मॉडल में आ गया है। Now when I go to the next model, I would say that they can charge on a per square feet basis. Per square feet basis is depending on the carpet area। That would mean कि आपका एक carpet area है, उसमें आपने क्या क्या include किया बस उसका charge किया जा रहा है। That means कि आपके carpet area में आपने से rooms कराए खाली तो room के charges हैं, आपने बालकनी इंक्लूड कर दी तो उसके भी हैं, आपने वॉशरूम इंक्लूड कर दिए उसके हैं, आपने वो एक्सक्लूड कर दिए तो उसके नहीं हैं चार्जेस। दिस इज़ लाइक द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे टू वर्क। अब इसका जो नेक्स्ट मॉडल होता है दैट वी कॉल इट एज अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग मॉडल वेयर इन यू विल ऑल्सो बी डूइंग दी वर्क। तो इस केस में इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर ऑल्सो वर्किंग विद मटीरियल विद लेबर, यानी कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो आपसे एक रेट करते हैं, उसमें उनकी डिज़ाइनिंग और मटेरियल और लेबर सब इंक्लूडेड होता है। आपने उनसे एक अमाउंट कर लिया कि आपने अपनी पूरी स्कोप ऑफ वर्क समझाया, स्पेसिफिकेशन समझाई अपने प्रोजेक्ट की, और उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन समझाने के बाद वो आपके लिए एक छोटा सा टोकन एडवांस लेंगे। उस एडवांस लेने के बाद वो आपको पूरे के पूरे घर का डिज़ाइन बना के देते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के साथ पूरे चार्जेस बताते हैं, जिसमें फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फर्नीचर, हाइलाइटिंग, एक्सेसरीज, कारपेट्स, रग सब इंक्लूडेड होता है। तो इसमें आपकी हेडेक बहुत कम हो जाती है, बट आपका कंट्रोल भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब जो स्पेसिफिकेशन इंटीरियर डिज़ाइनर ने लिखी हुई है वो ही फॉलो होंगी। उसमें इफ़ एंड बट करते ही प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके रेट्स थोड़े थोड़े वेरी करने लग जाएंगे। अब जब हम इस तरीके के मॉडल के बारे में देखते हैं तो क्वालिटी जो फर्स्ट मॉडल में आती है, जिसमें हम लेबर को अलग करते हैं, मटेरियल को अलग करते हैं और कंसल्टेंसी को अलग करते हैं, तो इसमें वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ बेटर क्वालिटी ऑफ work done at site. In the second model, the quality of work done at site is a little less than the first model. There is a third model on which interior designers work. वो third model होता है कि इसमें हम जो भी काम करते हैं उसमें interior designers would charge you on the designing and labor basis. इसमें मटेरियल नहीं इंक्लूडेड होता, मटेरियल क्लाइंट को लाके देना होता है। तो इसमें डिज़ाइनिंग चार्जेस कोट किए जाते हैं एंड लेबर चार्जेस कोट किए जाते हैं। दिस मॉडल वुड एसेंशियली मीन कि से आपने डिज़ाइन कंसल्टेंसी ली अबाउट से एक्स अमाउंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने एक आपको कोट कर दिया कि कारपेंटर अब जब ये काम करेगा, द डिज़ाइन हैज़ बीन फाइनलाइज, द कारपेंटर वुड चार्ज से 400 to 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फॉर फर्नीचर। Now this square feet is mainly only for carpenter work. Similarly electrician का, plumbing का, सबका ऐसे चार्ज दिया जाता है। और इस मॉडल के साथ क्या हो जाता है कि you get a liberty to choose your own items. तो आप मटेरियल खुद चूज़ कर रहे हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर आपको वो सब चीज़ें बना के दे रहा है। The interior designer will also take you to shops. You can experience the item and choose the one that suits your style and budget.
For instance, say you want to buy fittings, example knobs, locks, door handles, etc. for furniture. You get various options in different price ranges from rupees 200 a pair to 600 rupees a pair. And when you are working with an interior designer on this model, you can buy any range that you like. But this is again a flat fee model. The interior designer will charge you a gross flat fee for consultancy and supervision. The square feet rates again can be based on overall carpet area, square feet area of the work being done. जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्पेट एरिया में आप जो इंक्लूड करना चाहेंगे वो इंक्लूड हो जाएगा और जो आप छोड़ना चाहेंगे जिसमें आपको कोई काम नहीं करना वो एक्सक्लूड हो जाएगा. So these are the major 3 models on which interior designers work. But then, as I said, depending on the experience of interior designer, the charges may also vary. So आप कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते कि इंटीरियर डिज़ाइनर सबके एक जैसे चार्जेस होंगे. फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि कोई एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसने रेजिडेंसेस में अब काम करते हुए 20 साल हो गए हैं. दे हैव डन मोर देन लाइक 1500-1600 हाउसेस. तो उनके चार्जेस डेफिनेटली उस इंटीरियर डिज़ाइनर से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जिसको काम करते हुए 6 महीने हुए हैं या 2 महीने हुए हैं. बट उनका एक्सपर्टीज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा. तो जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होता है वैसे वैसे क्लाइंट का बेनिफिट ही होता है, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ लॉस नहीं होता है, किसी भी चीज़ का लॉस नहीं होता है. जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो बहुत एक्यूरेट होती हैं, BOQ बड़ा एक्यूरेट होता है, आपकी स्पेसिफिकेशंस बहुत एक्यूरेट होती है और क्लाइंट के किसी भी साइट पे कोई ट्रायल एंड एरर नहीं हो रहा होता. Whereas but as I said कि आप जब कोई नया इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर का स्कोप हो ही जाता है. बट एज आई सेड, आप अगर कोई एक रूम बनाना चाह रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू हायर समबडी हु इज काइंड ऑफ डन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देन यू कैन डू दैट ऑल्सो. किसी भी इंटीरियर डिज़ाइनर की वैल्यू हम ऐसे नहीं लगा सकते कि उसने वहाँ पे 1 घंटा लगाया और 1 घंटे में सारे डिज़ाइन बता दिए. तो उस 1 घंटे के डिज़ाइन बताने के पीछे उसका 5 साल की स्टडी है और शायद 15-16 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस है, तभी वो उस डिज़ाइन को आधे घंटे में या 1 घंटे में बना पा रहे हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इवैल्यूएट कि आप टाइम कितना लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे. व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ कि आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा आ रहा है. सो वाई आई एम सेइंग दिस इज़ दैट अगर आपकी मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है और कोई मैकेनिक आके उसे ठीक करता है 2 मिनट में, तो वो 2 मिनट के पैसे नहीं लेता, वो हमेशा पैसे आपसे ऐसे लेगा कि say he will charge you 1,000 rupees or 2,000 rupees to do a 2-minute work. But then there is an experience of couple of years which he is calculating in his fees, because without those couple of years of experience and without that education he would not know which nut to fit. Similarly is design consultancy, where to know what to do there is an experience and there is an education backed by it. So today I was generally talking about how do interior designers charge. Thank you friends for listening to me, and stay tuned to our YouTube channel. Do subscribe to our YouTube channel, and for any kind of design consultancy you can get in touch with us at the ansainteriors.com. And thank you so much. Have a great day. Bye.